Good morning, students. Welcome to today's class. Students, uh, in the lesson Religious Social Reforms Movements and National Awakening, we have studied till about the great social reformers of India, Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayanand Saraswati, and Mahadev Govind Ranade. Mahadev Govind Ranade. Raja Ram Mohan Rai, who founded Brahma Samaj in the year 1828, and Swami Dayanand Saraswati, who founded Arya Samaj in the year 1875. After that, we saw that Mahadev Govind Ranade founded Prarthana Samaj in the year 1867. Students, again I want to bring in your notice that all these social reformers, the organization they founded and the year, you must keep in your mind. You must keep your mind because this is the most important question. Okay, now Raja Ram Mohan Rai, Brahma Samaj in the year 1828, Swami Dayanand Saraswati, Arya Samaj in the year 1875, and Mahadev Govind Ranade, Prarthana Samaj in the year 1867. Now, students, in today's class, we are going to discuss on in other great social reformers of 19th century, and he is Mahatma Jyotiba Phule. Actually, he is Jyotiba Phule, but after that, this title Mahatma was given to him in the year 1888 by Sri Wandekar in the. Now, after that, he is known Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Jyotiba Phule. Now, students, in this class, we shall discuss about the Mahatma Jyotiba Phule, what the commendable work he did for the Dalits. है ना? So, students, now first listen all these points and then we shall discuss on your queries. If any queries, you can send on my WhatsApp. Okay, now students, I have already seen that no any student sent his query or her queries related to any topics, and most of the students, I think that they never see the videos, but they are only completing their copy. But when you get times, also see this, also watch this video, then it will really help you to remember all the question answer, because through this video or through this video clips till the end you can easily remember all the points related to the topics. So students, now we start today's topic, and it is Mahatma Jyotiba Phule. That is Mahatma Jyotiba Phule. Students, Mahatma Jyotiba Phule was a great thinker and writer of Indian society. महात्मा ज्योतिबा फुले भारतीय समाज के एक महान विचारक और लेखक थे, who did commendable work to remove many social evils which were prevalent in Indian society. Second point, he established Satya Shodhak Samaj. He established Satya Shodhak Samaj on 24th September 1873. Remember this point.
Mahatma Jyotiba Phule was a great thinker and a writer of India. He founded Satyashodhak Samaj on 24th September 1873. Brahma Samaj, Brahma Samaj, Raja Ram Mohan Rai in the year 1828. Arya Samaj, Swami Dayanand Saraswati in the year 1875. Prarthana Samaj, Mahadev Govind Ranade in the year 1867. And now Satyashodhak Samaj, Mahatma Jyotiba Phule in the year 1873. 1873. So the students keep this point. देखो, सबसे पहली बात मेरे को यहाँ बताने का ये उद्देश्य है कि किस समाज सुधारक ने किस संस्था की स्थापना की और कौन से सन में की। बस ये 3 पॉइंट याद रखो आप, और बाकी आप एक बात देखो, सब जगह सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबके जो उद्देश्य है वो कॉमन है ना। रिमूव अनटचेबिलिटी एंड इग्नोरेंस, इलिटरेसी, है ना, और विडो रीमैरिज, रिमूव चाइल्ड मैरिज, ये सब जो ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, इन सब के देखो सारों के उद्देश्य वही है, समाज से इन्हीं सबको हटाना है। बट उनके जो समाज है, उनके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर द डिफरेंट, है ना, ये अलग है। तो यू मस्ट कीप ओनली दिस पॉइंट, सोशल रिफॉर्मर्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेट ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और बाकी के सारों के ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग सेम है। तो आप उसको लिख भी सकते हो अपने मन से, अगर एक की भी याद कर लिए तो आप उसमें लिख सकते हो, है ना। तो हियर स्टूडेंट्स वी आर studying about the great social reformers of 19th century, and he is Mahatma Jyotiba Phule. Actually his name was Jyotiba Phule and Mahatma, this title, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि की गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी, पर उनको महात्मा गांधी कहते हैं क्योंकि ये उपाधि उनको, ये टाइटल उनको दिया गया था। तो ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले को ये टाइटल महात्मा के नाम से दिया गया था। तो महात्मा ये उपाधि श्री वांदेकर, ये मुंबई में एक सभा में 1888 में ये उनको उपाधि दी गई थी, उनके ये नोबल वर्क के कारण, इतने महान कार्य जो उन्होंने किए। माने महात्मा का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, जो दूसरों के दुखों को दूर करता है और लोगों को सत्य की राह पर ले जाता है, इसको कहते हैं महात्मा। तो इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले यह नाम उनका पड़ा, और उन्होंने भी समाज से कई बुराइयों को दूर करने में अपना अहम योगदान दिया। तो थर्ड पॉइंट, ही स्टार्टेड मैनी स्कूल्स फॉर दलित, you know, casteism, untouchability, these were prevalent in the Indian society in 19th century. Casteism, जातिवाद, we have already discussed on this point, है ना। उच्च जाति, मध्यम जाति, निम्न जाति, सबको डिवाइडेड किया गया था, they were divided, है ना। तो ये सब बातें हैं जिससे ज्योतिबा फुले काफी प्रभावित बने, उनको बहुत, ये बातें सब उन्हें बहुत परेशान करती थी। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला पॉइंट, तो ही डिड कमांडेबल वर्क फॉर द दलित, ही स्टार्टेड मेनी स्कूल्स, he started many schools for Dalits. And fourth point, हम ऐसा भी लिख सकते कि he did commendable work to remove the conditions of to improve the conditions of Dalits. फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे, इसको हम फिर रिपीट करने वाले, हमारा पूरा एक क्लास 30 मिनट्स का पूरा होगा ही होगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग 5-7 मिनट में पढ़ लिए और छोड़ दिए। जब तक आपको ये पॉइंट्स
पूरे आपके दिलो दिमाग में उतर नहीं जाते तब तक मैं छोड़ता नहीं आपको। पूरा आपको मैं इसको, बस आप लोग सिर्फ वो सोशल रिफॉर्मर्स, उन्होंने जो समाज की स्थापना की वो, और एक वो ईयर, ये आप पॉइंट दिमाग में रखो बस। बाकी मैं पूरा आपको फिर इसको पूरा रेडी करता हूँ आपको। तो देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले tried to remove untouchability from the Indian society and he was succeed in it. उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त छुआछूत को, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया और वो उसमें सफल भी हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज आइडियल। उनके आदर्शों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी प्रभावित थे, वे अपना गुरु मानते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने, ये 4 पॉइंट में हम ये भी लिख लेंगे कि ही डिड कमांडेबल वर्क टू रिमूव द अनटचेबिलिटी फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी एंड ऑल्सो अवेकन द सिटीजन और पीपल फॉर इट, और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया। इसके बाद ही वॉज स्टाउट सपोर्टर ऑफ स्टॉन्च, ही वॉज माने पक्के समर्थक थे विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज। तो ये पॉइंट्स थे महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित। अब इसको हम लोग एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे, है ना। तो महात्मा ज्योतिबा फुले, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले उनकी वाइफ, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस मिशन को कामयाब करने में पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने वाइफ को पढ़ाया था और उनकी वाइफ ने, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने फिर पूरे समाज में शिक्षा की क्रांति ला दी, रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। सारी महिलाओं को पढ़ाने लग गई, महिलाओं को पढ़ा लिखा कर साक्षर बनाने लगी। तो हम कहते हैं कि नहीं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, माने प्रत्येक एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का एक क्या होता है, साथ होता है। तो यही एक कहावत उन्होंने चरितार्थ की। किसने? सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले की वाइफ। तो सावित्रीबाई फुले ने भी क्या किए, महात्मा ज्योतिबा फुले के इस मिशन को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार जान लेते हैं पूरे पॉइंट्स हिंदी में। उसके बाद देखो, सरल पॉइंट है, बिल्कुल सरल है। इस वीडियो के खत्म होते होते, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे। अब देखो पहला पॉइंट, महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के एक महान विचारक और लेखक थे। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तीसरा पॉइंट, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और दलितों के लिए काफी स्कूल भी खोले। चौथा पॉइंट, उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। पांचवा पॉइंट, महात्मा ज्योतिबा फुले ही वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज, और वो विधवा पुनर्विवाह के भी पूर्ण समर्थन थे। तो इस तरह से ही हो गया बेटा पॉइंट। अब देखो सिंपल, फर्स्ट पॉइंट, थिंकर एंड राइटर। महात्मा ज्योतिबा फुले वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड राइटर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेकंड पॉइंट,
सत्यशोधक समाज. He founded Satyashodhak Samaj in the year on 24 September 1873. 24 September 1873. Third point, he did commendable work to improve the condition of Dalits and started many schools for them. Fourth point, he opposed untouchability and awakened the people towards this. Fifth point, he was great supporter to widow remarriage. हो गया, बस सिंपल है बेटा, पॉइंट सरल है ना, हो गया याद. तो पहला पॉइंट हो गया राइटर एंड थिंकर. सेकंड पॉइंट हो गया सत्यशोधक समाज 1873. थर्ड पॉइंट इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दलित्स एंड स्कूल्स. फोर्थ पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट opposed untouchability. फिफ्थ पॉइंट स्टॉन सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज. तो ये 5 शॉर्ट पॉइंट के आधार पर आपको ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए. स्टूडेंट्स, महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 में. अब ये सत्यशोधक समाज है क्या? सत्यशोधक समाज मीन्स सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज करना. अब इन्होंने जो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के पीछे भी एक कहानी है. अब सुनो वो कहानी क्या है. एक बार क्या हुआ कि महात्मा ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण मित्र के यहां शादी में गए थे. और पहले ये बता दूं आपको कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का उद्देश्य उन्हें शूद्र व अछूत थे, उनको उनकी स्थिति में सुधार लाना, उनको समाज में एक जैसा दर्जा प्रदान करना था. तो अब होता क्या है कि एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए. तो वहां जातिगत परंपराएं और वैमनस्यता के कारण उन्हें काफी अपमानित होना पड़ा. उनका अपमान किया गया और उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया. धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया. अब जब वे घर पहुंचे और पिताजी से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या था कि मुझे इस तरह से अपमान सहना पड़ा, तो पिताजी ने कहा कि बेटा, यह एक सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था है. क्या? कास्टिज्म, जातिवाद, ऊंची जाति नीची जाति. वे ब्राह्मण हैं, भूदेव है, भू के स्वामी हैं, ऊंची जाति के हैं, हमें उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए. फिर से ज्योतिबा फुले जी ने पूछा कि मैं वहां जब गया तो मैंने काफी साफ सुथरे, उनसे भी अच्छे कपड़े पहने थे, काफी साफ सुथरे कपड़े पहने थे. मैं बहुत पढ़ा लिखा भी, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और अमीर भी हूं, फिर भी मुझे यह अपमान सहन करना पड़ा. ये ऊंची जाति नीची जाति होती क्या है? ये ऊंची जाति नीची जाति होती क्या है? पिताजी ने चिढ़ गए, बोले देखो बेटा, इसमें कोई मतलब नहीं रखा है, यह सदियों से चली आ रही परंपरा है और हमें इसे मान्य करना पड़ेगा. हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है कि ब्राह्मण ऊंची जाति के, हम शूद्र नीची जाति के, क्योंकि ऑक्यूपेशन के आधार पर समाज को बांटा गया है, आपके व्यवसाय के आधार पर समाज को बांटा गया है. तो ज्योतिबा फुले विचार करने लग गए कि धर्म जो है वो हमारे जीवन का आधार है. फिर यही धर्म किस तरह से
इस तरह की विषमताओं को उत्पन्न करता है। कैसे कह सकता है कि कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है? ये धर्म कैसे कह सकता है कि कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है? जबकि सारे मनुष्यों का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर एक ही है। सारे मनुष्यों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो फिर ये समाज में इतनी विषमता, ऊंच नीच क्यों व्याप्त है? ऐसा क्या कारण है? ये तो गलत है, असत्य है। धर्म ने तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि धर्म जीवन का आधार है। ये असत्य है। मुझे इस सत्य को लोगों के सामने लाना ही पड़ेगा, इस असत्य को बताना ही पड़ेगा। तो इस का मुझे निराकरण करना ही पड़ेगा, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इस तरह की जो विषमता व्याप्त है क्यों है, इन सब के कारणों को मुझे जानना ही पड़ेगा और लोगों को समाज के सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग धर्म को मानते हैं और धर्म जो है वो जीवन का आधार है। इट इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, रिलीजन, धर्म। तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा। तो इस सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज, यानी सत्य की खोज करना, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य क्या है, इसकी खोज करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये कहानी है बेटा सत्य शोधक समाज की स्थापना के पीछे श्री महात्मा ज्योतिबा फुले जी। तो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट related to Mahatma Jyotiba Phule. He was a great thinker and writer of Indian society. He founded Satya Shodhak Samaj on 24 September 1873. He did commendable work for the condition of Dalit, to improve the condition of Dalit. And next, he started many schools for the Dalit. He was opposed to untouchability and awakening the people towards the untouchability, and he was staunch supporter of widow remarriage. So students, you understood all these points, and in the next class we shall meet with new social reformers. Till then, read all this point. And one thing again I am telling you, Raja Ram Mohan Rai, Brahma Samaj in the year 1828, Swami Dayanand Saraswati, Arya Samaj in the year 1875, Mahadev Govind Ranade, Sri Mahadev Govind Ranade, Prarthana Samaj in the year 1867, and now Mahatma Jyotiba Phule, Sri Mahatma Jyotiba Phule Satya Shodhak Samaj in the year 1873. Keep all this point, remember all this point. Okay, now when on Monday, when we shall be interconnected with each other on Zoom meeting, then I shall ask this point to all the students who will participate on that day. Okay, now till then, goodbye.